Hello friends, today we will going to study a new chapter in mathematics, that is Introduction to Trigonometry. So in this chapter we will going to learn some practical concepts, some those concepts which are actually used by engineers in ancient times, in medieval times and in modern days. Okay, we will use those concepts to understand to draw some conclusions and a detailed concept of how these concepts have been evolved from the ancient times. Now, introduction to trigonometry में it means we will introduce the trigonometry. अभी तक आपने trigonometry में कभी कुछ नहीं पढ़ा है, first time trigonometry आप पढ़ रहे हैं. So what you need to know about trigonometry in the very first class, okay, that concept we will going to discuss. The first thing that we need to understand is the meaning of trigonometry, that what exactly this term means. Okay, for example आपको कोई vocabulary का word नहीं आता, so what you do, you go to take a dictionary और उस dictionary में search करके आप उस word का meaning देखते हैं. In the similar manner यहाँ पर भी सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्री के मीनिंग को समझते हैं. देखिए, ट्रिग्नोमेट्री बना है तीन शब्दों से मिलकर. ओके, इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ थ्री वर्ड्स. द थ्री वर्ड्स आर, फर्स्ट इज ट्राई, देन नेक्स्ट इज गॉन एंड द नेक्स्ट इज मेट्रॉन. ट्राई का मतलब होता है थ्री. ट्राई मीन्स थ्री. गॉन मीन्स साइड्स. ओके, गॉन मीन्स साइड एंड मेट्रॉन, गॉन मीन्स साइड और एज यू कैन से, एंड मेट्रॉन मीन्स मेजर. So what I mean to say is that trigonometry is basically the concept of three sides measure. Okay, try to understand what the trigonometry is. It's a concept of three side measure. Now what is this three side measure? What exactly I mean to say if I say three side measure? You know, you have seen a practical figure, you have seen a plane figure, okay, which has three sides, which has three edges. And what is that side? What is that figure? That figure is known as triangle. That figure is known as triangle. So I can say that trigonometry means three sides measure. It means the measuring of three sides or the measuring of three edges. That is the measuring of triangle. Okay, that is the measuring of triangle. It is the simple meaning of trigonometry. Now what is the measuring of triangle? अगर मैंने कहा कि ट्रायंगल को मेजर करना, मतलब क्या मेजर करना, ट्रायंगल में क्या मेजर करेंगे. सो इफ आई ड्रॉ अ ट्रायंगल, लेट अस से दिस ABC is a triangle. In this triangle, if I ask you to measure the triangle, it means what? It means I am asking you to measure some of the parameters of these triangle. Now what are the parameters of triangle? The parameters of triangle are the sides of the triangle and the angles of the triangle. Okay, parameters of the triangle का मतलब होता है triangle की sides या फिर triangle के angles. क्योंकि इस ट्रायंगल में हमें सिर्फ दो ही चीजें इंपॉर्टेंट दिखाई देती हैं. एक ट्रायंगल जब फॉर्म होता है तो हमारे पास तीन साइड्स होती हैं, AB, BC और AC. ओके, और तीन एंगल्स होते हैं, एंगल A, एंगल B और एंगल C. ओके, खास तौर पे ट्रायंगल्स में यही 6 पैरामीटर्स होते हैं. वैसे तो और भी पैरामीटर्स हैं बट हमें उनका काम नहीं है, हम सिर्फ बेसिक पैरामीटर्स की बात कर रहे हैं, दैट इज 3 sides and 3 angles. So ultimately in this topic, in this trigonometry, what we will going to do is we will going to analyze the three-sided figure. We will going to analyze the three-sided figure, or I will say we will going to measure a three-sided figure.
सो यहां से एक चीज बिल्कुल क्लियर होती है माइंड में कि ट्रिग्नोमेट्री टॉपिक में अल्टीमेटली हमें सिर्फ ट्रायंगल्स से ही डील करना है, हमें सिर्फ ट्रायंगल्स के बारे में समझना है, ट्रायंगल्स की कुछ प्रॉपर्टीज को देखना है। ओके, सो ट्रायंगल्स की प्रॉपर्टीज, ट्रायंगल्स के बारे में समझने के जो टॉपिक है, इस कंसेप्ट को हम कहते हैं ट्रिग्नोमेट्री। ओके, दैट इज थ्री साइड्स मेजर। नाउ the important point is that why we need to understand the triangle, why we want to study the triangle, what is the special thing about these triangles that we have created a separate branch in mathematics named as trigonometry which totally deals with the triangles. There are some specific uses. It's because the trigonometry or the concept of trigonometry or the triangle is important for practical purpose even today. आज के समय में भी ट्रिग्नोमेट्री एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है बिकॉज इसके प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस बहुत सारे हैं। एंशियंट टाइम से ही एस्ट्रोलॉजर्स जो होते थे वह ट्रिग्नोमेट्री को यूज किया करते थे, वह ट्रिग्नोमेट्री के कंसेप्ट को यूज करते थे। क्यों यूज करते थे? बिकॉज दे यूज दिस कॉन्सेप्ट्स, दे अप्लाई दिस कॉन्सेप्ट टू मेजर the distance of moon from the earth or the distance of other celestial bodies from the earth, that is the sun or the some planet, let us say Mars or let us say Jupiter. So they use the concepts of trigonometry to measure such a huge distances. That distances are in light years. Okay, that distances are in light years and they used to measure that distances, okay, by the use of trigonometry. So just imagine how powerful the tool of trigonometry is for us. In the practical time, when you see a civil engineer, when he is making a building or he is making some design, or see an architect which is making some architecture, you will see that he also applies the concepts of trigonometry. If you see Qutub Minar, if you see, let us say, Eiffel Tower, if you see Taj Mahal, all these monuments have in one or the other way have used, the engineers who built this monument in one or the other way has used the concepts of trigonometry, then only they are able to build such a huge monuments. Okay, such a magnificent monuments are built on the basis of this chapter. So that's why this chapter contains a huge weightage. इस चैप्टर का इसीलिए बहुत ही ज्यादा वेटेज होता है। अब खास बात आती है कि मैंने आपको बता दिया कि हाँ, ये मॉन्यूमेंट्स बिल्डिंग में सिविल इंजीनियर्स यूज करते हैं, आर्किटेक्ट यूज करते हैं, एस्ट्रोलॉजर्स यूज करते हैं, लेकिन यूज करते कैसे हैं और यूज करते हैं तो ट्रिग्नोमेट्री में क्या यूज करते हैं, ये जानने की जरूर आपकी इच्छा हो रही होगी। सो लेट्स अंडरस्टैंड दिस बाय अ सिंपल एग्जांपल। आई गिव यू अ वेरी बेसिक, वेरी सिंपल एग्जांपल। फॉर एग्जांपल, इफ यू विजिट कुतुब मीनार, ओके, इफ यू विजिट टू सी कुतुब मीनार, you can see that if I am standing on a ground, let us say this is a ground, this is a ground level and Qutub Minar is like this. This is a vertical building AB, this is Qutub Minar. Now since I am standing on the ground, that is, let us say at this point, so from here what I will do, I will observe this Qutub Minar. I will observe each and every part of this Qutub Minar. So let us say I observe this A point, that is the peak of the Qutub Minar. If I am observing the peak of this building, I can see, if I join this peak with my eyes, I can see a figure is formed which is known as a triangle. Okay, if I am observing this Qutub Minar, a figure is formed which is known as a triangle. You can see this is a triangle AB and this is, let us say, the observer. So ABO becomes a triangle. Okay, so now what the astrologers, what the scientists, what the mathematicians in the past times, what they thought that if this is a triangle, if there is some triangle formed here, then how can we use this concept to measure the length of this building? Okay, क्या सोचा गया कि कुतुब मीनार की लेंथ नापने के लिए मैं उसकी छत पे चढ़ के टेप से क्यों लेंथ नापूं, मैं डायरेक्टली ग्राउंड पे खड़े होके क्यों नहीं उसकी लेंथ नाप सकता। इस बारे में सोचा गया
और फिर ट्रिग्नोमेट्री का एक तरह से कहें इन्वेंशन हुआ. ओके, देयर इज नो सिंगल पर्सन जिसने ट्रिग्नोमेट्री इन्वेंट किया. देयर आर लॉट्स ऑफ साइंटिस्ट, मैथमेटिशियंस who in one or the other way applied their knowledge of mathematics to develop the concepts of trigonometry. जैसा यहाँ पर ट्राइंगल बनता है. For example, I am observing a plane. For example, this is a ground level. I am standing here and there is an aeroplane in the sky. Let us say this is an aeroplane. Let us say this is an aeroplane and I am observing this aeroplane. So what will happen? If I join the aeroplane with my eyes like this is a line, okay, and this is the distance of this aeroplane from my eyes, and if I join a line from this aeroplane that is perpendicular to ground like this, then I will say this is a perpendicular, this is the altitude of aeroplane. Okay, this represents the altitude of aeroplane, this represents the distance of aeroplane from my eyes. Okay, I can again see there is a triangle form. यहाँ पर भी एक triangle form होता हुआ दिखाई देता है. Okay, similarly, if I am standing at a height, let us say I am standing on a building. Let us say this is a building AB, and I am standing at the top of this building. Let us say I am standing here. यहाँ पर खड़े होके, let us say I am observing a plant here. Let us say I am observing a stone. This is a stone and I am observing it from the top of this building. So what will happen? The distance of the stone from my eye is this one. I can again see a triangle is formed. So what I can see is that in different practical situations, in different concepts, okay, the triangle are getting formed. हर बार क्या हो रहा है? कोई ट्राइंगल फॉर्म हो रहा है. और स्पेसिफिकली कौन से ट्राइंगल्स? स्पेसिफिकली फॉर्म हो रहे हैं राइट एंगल्ड ट्राइंगल्स. कौन से ट्राइंगल्स? राइट एंगल्ड ट्राइंगल्स. जनरली राइट एंगल ट्राइंगल्स फॉर्म हो रहे हैं. सो इन ट्रिग्नोमेट्री, जैसा कि मैंने कहा, वी विल गोइंग टू डील विद ट्राइंगल्स, बट व्हेन कमिंग टू द इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री, मतलब जब हम कॉन्सेप्ट को सीख रहे हैं, पहली बार इस कॉन्सेप्ट को देख रहे हैं, पहली बार इससे फेमिलियर हो रहे हैं, इन दैट केस वी विल गोइंग टू डील ओनली विथ द राइट एंगल्ड ट्राइंगल्स. हम सिर्फ और सिर्फ राइट एंगल्ड ट्राइंगल्स के बारे में ही बात करेंगे, राइट एंगल ट्राइंगल्स के बारे में ही, उनकी प्रॉपर्टीज के बारे में ही पढ़ेंगे. ओके, इस चीज को हमने कह दिया ट्रिग्नोमेट्री. ओके, so ultimately what we will going to study in trigonometry is the measurement or the analysis of right angled triangles. Measurement or analysis of right angled triangle. Okay, I will only try to understand the right angle triangles. Now, अब right angle triangles को यूज करके किस तरह से हम ट्रिग्नोमेट्री को डेवलप करेंगे, क्या चीज हम इससे सीखना चाहते हैं, हम उस पर डिस्कस करते हैं. देखिए, जैसा मैंने कहा कि हम राइट एंगल ट्राइंगल्स के बारे में एनालिसिस करेंगे, इनका मेजरमेंट करेंगे. तो क्या मेजर करेंगे, क्या चीज को हम निकालेंगे, किस चीज का एनालिसिस करेंगे, ये बहुत सारे सवाल आपके माइंड में घूम रहे होंगे. So I will explain this in one single line, that in this chapter we will develop a relation between the angles and sides of triangles. Okay, what we will going to do is we will going to develop a relation between the angles and the sides of this triangle or of different right angled triangles. Okay, ultimately हमारा टास्क है इस चैप्टर में
एंगल्स और साइड्स के बीच में रिलेशन डेवलप करना। अभी तक हमें ऐसा कोई रिलेशन नहीं पता, अभी तक हमें कोई भी ट्रायंगल के बारे में, और स्पेसिफिकली अगर हम बात करें तो राइट एंगल ट्रायंगल्स के बारे में सिर्फ दो ही प्रॉपर्टी पता है। कौन सी दो प्रॉपर्टी? पहली प्रॉपर्टी ये कि इस एंगल का सम और इस एंगल का सम 90 डिग्री होता है। लेट अस से दिस इज ए एंड दिस इज सी, सो ए प्लस सी जो होता है ये 90 डिग्री होता है। यू नो दिस, ये आपको पता है। दूसरी चीज जो आपको पता है कि ए सी का स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर, मतलब पाइथागोरस थ्योरम, ये भी आपको पता है। अब अगर पहले रिलेशन को देखें तो ये सिर्फ एंगल्स का रिलेशन है, दूसरे रिलेशन को देखें तो ये सिर्फ साइड्स का रिलेशन है। लेकिन अगर मुझे इन दोनों को रिलेट करना है, मुझे एंगल्स और साइड्स को एक दूसरे से रिलेट करवाना है, तो कैसे रिलेट कराऊं, किस तरह से रिलेट कराऊं, हम उस कॉन्सेप्ट को समझते हैं। देखिए, बिल्कुल सिंपल सा एक एग्जांपल हम लेते हैं। लेट अस से ये ग्राउंड लेवल है, आई एम अज्यूमिंग दैट दिस इज अ ग्राउंड लेवल एंड आई एम स्टैंडिंग हियर, मैं यहां पर कहीं खड़ा हूं, मैं यहां पर कहीं खड़ा हूं, ओके, एंड देयर इज अ बिल्डिंग इन फ्रंट ऑफ मी, मेरे सामने एक बिल्डिंग है, लेट अस से ए बी। ए बी एक बिल्डिंग है जो कि मेरे सामने है। आई एम द ऑब्जर्वर, सो मैं अपने आप को ओ कहता हूं। अब मैं जब इस बिल्डिंग को देखना चाहता हूं, इस पॉइंट से जब मैं इसे देखूंगा, ओके, सो आई विल ऑब्जर्व द बिल्डिंग फ्रॉम द बॉटम टू टॉप। मैं पूरी तरह से बिल्डिंग को ऑब्जर्व करूंगा, नीचे से लेके ऊपर तक। जब मैं बिल्डिंग के बॉटम को ऑब्जर्व कर रहा हूं तो बिल्डिंग के बॉटम और मेरे आईज के बीच में ये OB डिस्टेंस है। ये बिल्डिंग का बॉटम मेरी आईज से इतना डिस्टेंस की दूरी पर है, ओके। नाउ अगर मैं बिल्डिंग के टॉप को देखता हूं तो बिल्डिंग का टॉप मेरी आईज से कुछ इतना डिस्टेंस की दूरी पर है, ओके, दैट इज AO, इतना डिस्टेंस है मेरी आईज और बिल्डिंग के टॉप के बीच में। सो आई कैन सी यहां पर एक राइट एंगल्ड ट्रायंगल फॉर्म होता है। राइट एंगल ट्रायंगल की खास बात क्या है? इसमें एक हाइपोटेनियस होता है, एक परपेंडिकुलर होता है और एक बेस होता है, ये आप बहुत अच्छे से जानते हैं। तो मैं कहता हूं कि OB को मैं बेस मान लेता हूं, AB को मैं परपेंडिकुलर मान लेता हूं, ओके। AB को क्या मानता हूं? परपेंडिकुलर। और AO को क्या मानता हूं? AO तो हाइपोटेनियस है, AO इज सिंपली द हाइपोटेनियस, ओके। नाउ ऑब्जर्व इट वेरी केयरफुली। अगर मेरे पास ये AB बिल्डिंग है, AB बिल्डिंग के पीछे, AB बिल्डिंग के बिल्कुल पीछे एक और बिल्डिंग है, एक और बिल्डिंग है दैट इज लाइक दिस, कुछ इस तरह से एक CD बिल्डिंग भी इस AB बिल्डिंग के पीछे है। नाउ CD बिल्डिंग AB बिल्डिंग से पीछे है और हाइट में भी ज्यादा है। AB बिल्डिंग से इसकी हाइट कितनी है? इससे ज्यादा है, ओके। CD बिल्डिंग इज टॉलर बिल्डिंग। Now, if I am observing the top of this building, if I am observing the C point of this building, then what is the distance between my eyes and this point C? Okay, I can see that if I extend this OA line, ये C point कुछ इस तरह से बना हुआ है कि अगर मैं इस OA line को extend करता हूं तो ultimately it will going to touch this C point. Okay, ultimately it will going to touch this C point. So मुझे दिख रहा है जैसा AOB एक ट्रायंगल बना था, एक राइट एंगल ट्रायंगल बना था, कुछ उसी तरह से COD नाम का भी एक राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म हो जाता है। इट्स सिंपली इट इज फॉर्मिंग। लेकिन खास बात एक है, और वह खास बात यह है कि यहां पर ट्रायंगल AOB में ये एंगल O था, ये एंगल क्या था? O। और ट्रायंगल COD में भी यही एंगल O था, यही एंगल O है, ये एंगल चेंज ही नहीं हुआ, ये एंगल O है। तो हम देख सकते हैं ये दोनों ट्रायंगल्स में ये एंगल एक जैसा है, ये एंगल नहीं बदल रहा। सिर्फ क्या बदल रहा है? इस एंगल को फॉर्म करने वाली साइड्स की लेंथ। जैसे ये OB था, ये AO था, ओके। AO को मैंने बढ़ा के OC कर दिया और OB को बढ़ा के मैंने OD कर दिया। लेकिन क्या एंगल चेंज हुआ? एंगल चेंज नहीं हुआ, ओके। एंगल में कोई फर्क नहीं दिखाई देगा। नाउ व्हेन यू ऑब्जर्व दिस टू ट्रायंगल्स, यू कैन सी बोथ द ट्रायंगल्स आर बेसिकली सिमिलर ट्रायंगल्स। दोनों ट्रायंगल्स कैसे हैं? सिमिलर हैं।
अगर ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर है तो क्या कंडीशन होती है सिमिलैरिटी की? हम कहते हैं अगर टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर देन देयर कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल। उनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स कैसी होती हैं? प्रोपोर्शनल होती हैं। ये हम जानते हैं बहुत अच्छे से, मतलब OB अपॉन OD लिखूंगा दैट विल बी इक्वल्स टू AB अपॉन CD। ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। नाउ खास बात जब आप ये देखेंगे कि इन दोनों ट्राइंगल्स में अगर मैं AB अपॉन OB का लेंथ निकालता हूं, अगर मैं ट्राइंगल AOB में AB अपॉन OB का लेंथ निकालता हूं, ओके, AB अपॉन OB, इसका कुछ लेटस से रेशो आएगा, कुछ रेशो आएगा। सिमिलरली मैंने CD अपॉन OD का भी रेशो निकाला, जैसा मैंने AB अपॉन OB का रेशो निकाला उसी तरह से CD अपॉन OD का भी रेशो निकाला और वो आ गया CD अपॉन OD। The important thing that you will observe here is that both these ratios are same। आपको ये दिखाई देगा कि यह दोनों रेशियोज बिल्कुल सेम है, इन रेशियोज में कोई फर्क ही नहीं है। दे आर एग्जैक्टली सेम। नाउ व्हाई दे आर एग्जैक्टली सेम? इफ आई एक्सटेंड दिस C अगेन, अगर मैं इस C को और आगे बढ़ाता हूं, लेट अस से इस E पॉइंट तक, और फिर से एक इस तरह से एक बिल्डिंग यहां पर खड़ी है EF, तो अगेन आई कैन सी ये एंगल O, ट्राइंगल EOF में भी यही एंगल O लाई कर रहा है। तो अगेन जैसा मैंने AB अपॉन OB निकाला, जैसा मैंने CD अपॉन OD निकाला, जैसा मैंने इसी तरह से मैंने EF अपॉन OF कैलकुलेट करा, इसी तरह से मैंने EF अपॉन OF कैलकुलेट करा और मैंने ये देखा कि यह रेशो भी इन दोनों रेशोज के बिल्कुल बराबर है, इसमें कोई फर्क ही नहीं है, ये रेशो बिल्कुल बराबर है। ओके, सो जो मैथमेटिशियंस लाइक एंशिएंट टाइम्स में थे, उन्होंने क्या करा, उन्होंने इस तरह से बहुत सारे ट्राइंगल्स बना के, बहुत सारे ट्राइंगल्स को डिफरेंट शेप्स में बना के, राइट ट्राइंगल्स बना के, और इस तरह की चीज को ऑब्जर्व करा। तो यहां से उन्होंने क्या ऑब्जर्व करा, क्या खास बात देखी? उन्होंने ये देखा कि अगर ये एंगल कांस्टेंट है, ये एंगल कांस्टेंट है, तो ये परपेंडिकुलर, इस ट्रायंगल का परपेंडिकुलर और इस ट्रायंगल के बेस का जो रेशो है AB अपॉन OB, यह रेशो चेंज नहीं होता। मतलब ये रेशो कैसा है? ये रेशो एक कांस्टेंट है। तो व्हाट दे कंक्लूडेड? दे सिंपली कंक्लूडेड दैट the ratio of any two sides of a right angled triangle they concluded that the ratio of any two sides of a right angled triangle is dependent on the angle of, or dependent on the angles of the triangle। उस ट्रायंगल के एंगल्स के ऊपर ये चीज डिपेंड करती है कि ये रेशो कितना होगा। कोई भी दो साइड्स आप ले लीजिए, उनका रेशियो हमेशा डिपेंड करेगा उस ट्रायंगल के एंगल्स के ऊपर। ये सिंपल सा कंसेप्ट है। मतलब ये हमने क्या डेवलप किया? हमने डेवलप किया द साइड्स, ट्रायंगल की साइड्स और ट्रायंगल के एंगल्स के बीच में एक रिलेशन, एक सिंपल सा रिलेशन हमने डेवलप किया। ओके, एंड बेस्ड ऑन दिस रिलेशन वी डेवलप्ड अ कॉन्सेप्ट व्हिच इज नोन एज ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज। और इस कंसेप्ट पे बेसिस पे हमने डेवलप किया एक नया कॉन्सेप्ट दैट इज ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। क्या होते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज? इसे हम समझते हैं, पहले इसे आप नोट कर लीजिए। ओके, सो एज आई टोल्ड यू दैट इन ट्रिग्नोमेट्री वी विल डील विद बेसिकली द रिलेशन बिटवीन द साइड्स एंड द ट्रायंगल्स, okay, sides and the angles of a triangle. So we will relate these two things, the sides and the angles of a triangle,
with the help of trigonometric ratios. Okay, with the help of trigonometric ratios. तो हम ये समझते हैं कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो एग्जैक्टली क्या चीज होती है. ओके, नाउ फॉर दैट एक सिंपल सा अजम्पशन हम लेके चलेंगे, हम एक सिंपल सी बात मान के चलेंगे कि हम सिर्फ और सिर्फ डील कर रहे हैं राइट एंगल्ड ट्रायंगल से. ओके, हम सिर्फ और सिर्फ किस तरह के ट्रायंगल से डील कर रहे हैं? राइट एंगल्ड ट्रायंगल से. और दूसरा अजम्पशन हम ये लेके चलेंगे कि हम सिर्फ और सिर्फ एक्यूट एंगल्स से डील कर रहे हैं. ओके, we will deal only with acute angles. Okay, what are acute angles? Angles which are less than 90 degrees. Angles which are less than 90 degrees are known as acute angles. So we will going to deal only with the acute angles, and that too with only the right angled triangles. This is the basic assumption that we need to take. वैसे तो ट्रिग्नोमेट्री हर तरह के एंगल पे अप्लाई होती है, लेकिन हमें जो पढ़ना है इस 10th क्लास के सिलेबस में हमें सिर्फ 90 डिग्री से छोटे एंगल्स से ही डील करना है. नाउ व्हाट आर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, हम इसे समझते हैं. फॉर एग्जाम्पल, आई ड्रॉ अ राइट एंगल ट्रायंगल लाइक दिस. मैंने इस तरह से एक राइट एंगल्ड ट्रायंगल बनाया. ओके, लेट अस से दिस इज ABC. In this ABC, this angle is 90 degree, you can see. Now if I ask you what is the hypotenuse of this triangle, you will say the side which is the largest, which is the longest, that will be the hypotenuse. And we know that जिस एंगल के सामने जो साइड होती है, ओके, लार्जेस्ट एंगल के सामने लार्जेस्ट साइड होगी, स्मॉलेस्ट एंगल के सामने स्मॉलेस्ट साइड होगी. इस कंसेप्ट को भी आपने पढ़ा है. सो मैं कहता हूं कि ये एंगल 90 डिग्री है. दिस इज द लार्जेस्ट पॉसिबल एंगल इन दिस ट्रायंगल. ओके, ये दोनों एंगल्स 90 डिग्री कभी नहीं हो सकते. तो AB हमारा हाइपोटेनियस है. सो AB इज व्हाट इट इज? हाइपोटेनियस. AB is basically the hypotenuse. Now let us consider this angle C. इस एंगल C को कंसिडर कीजिए. एंगल C मुझे दिख रहा है. कोई सा भी एंगल फॉर्म कैसे होता है? दो स्ट्रेट लाइंस को मिला के. तो हम देख सकते हैं एंगल C फॉर्म हो रहा है एक तो हाइपोटेनियस को मिला के और एक इस BC साइड को मिला के. ओके, हाइपोटेनियस को मिला के और BC साइड को मिला के. तो एंगल C को बनाने के लिए एक तो जो साइड हुई, एक जो स्ट्रेट लाइन हुई, उसे मैंने कह दिया हाइपोटेनियस. तो जो दूसरी स्ट्रेट लाइन है, जो दूसरी साइड है जिससे ये एंगल C फॉर्म हो रहा है, उसे मैं कहूंगा बेस. ओके, मैं उसे कहूंगा बेस. और सिमिलरली जो भी साइड बची हुई है, which side is left? This AB. तो AB को मैं कहूंगा परपेंडिकुलर. ओके, AB को मैं क्या कहूंगा? परपेंडिकुलर. नाउ अगर मैं एंगल C पे खड़ा होके सामने देख रहा हूं, तो सामने मुझे क्या दिख रहा है? AB. तो मैं कहूंगा कि परपेंडिकुलर बेसिकली क्या है? परपेंडिकुलर इज द साइड अपोजिट टू दिस एंगल. इस एंगल के अपोजिट जो साइड है, इसे मैं कहूंगा परपेंडिकुलर. अगेन रिमेंबर, वी आर ओनली डीलिंग विद द राइट एंगल्ड ट्रायंगल्स. सो आई विल से दैट AC इज हाइपोटेनियस with respect to AC is hypotenuse with respect to angle C. Okay, then AB is perpendicular with respect to angle C, and BC is base with respect to angle C. So मेरा कहने का मतलब क्या है? मैं क्या कहना चाह रहा हूं? मैं ये कहना चाहता हूं कि जो एंगल C है, अगर मैं इस ट्रायंगल की सभी साइड्स को एंगल C के नजरिए से देखूं, एंगल C के रिस्पेक्ट में देखूं,
मतलब एंगल सी की जगह पे खड़े होकर देखूं, तो मुझे दिखाई देगा कि जो साइड मेरे ऑपोजिट है उसे मैंने परपेंडिकुलर कहा, जो साइड मेरे नीचे है उसे मैंने बेस कहा, और जो साइड मेरे ऊपर है उसे मैंने हाइपोटेनियस कहा. सो वी विल कॉल दैट दिस AC is hypotenuse but with respect to angle C. एंगल C के नजरिए से देखने पे ये हाइपोटेनियस दिखाई देती है. एंगल C के नजरिए से देखने पे AB मुझे परपेंडिकुलर दिखता है, और एंगल C के नजरिए से देखने पे BC मुझे क्या दिखाई देता है? बेस दिखाई देता है. अगर यही चीज मैं एंगल A के लिए करता हूं, अगर यही चीज मैं एंगल A के लिए करता हूं, सो दिस इज एंगल A, दिस इज एंगल ए. इस एंगल ए के रिस्पेक्ट में मैं देखता हूं, एंगल ए को बड़े ध्यान से देखिए. एंगल ए बना है दो स्ट्रेट लाइन से. कौन सी दो स्ट्रेट लाइन? एंगल ए इज फॉर्म्ड बाय स्ट्रेट लाइन AC एंड AB. तो मैं कहूंगा AC और AB में से जो सबसे लंबी साइड है दैट इज द हाइपोटेनियस. तो AC हो गया हाइपोटेनियस, और AB जो साइड है, AB और AC से मिलके बनने वाला जो एंगल है एंगल A, इसमें AC हो गया हाइपोटेनियस. तो AB को मैं क्या कहूंगा? AB हो जाएगा बेस. ओके, AB क्या हो जाएगा? बेस. और BC हो जाएगा परपेंडिकुलर. तो मैं कहूंगा कि जो साइड BC इस एंगल C के लिए बेस थी, वही साइड BC एंगल A के लिए क्या कहलाएगी? परपेंडिकुलर, बिकॉज एंगल A के सामने है ये साइड. ओके, तो इस तरह से हम एंगल के स्पेसिफिक साइड को डिफाइन करेंगे. हम एंगल के स्पेसिफिक, एंगल के संबंध में, एंगल के रिस्पेक्ट में बताएंगे कि किस साइड को क्या कहना चाहिए. तो हम अभी सिर्फ कहते हैं कि एंगल C के कंपैरिजन से देखिए, एंगल C के नजरिए से देखिए, हम कहेंगे कि AB परपेंडिकुलर है, BC बेस है और AC हाइपोटेनियस है. सो वी विल डिफाइन द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज एज, द फर्स्ट रेशियो दैट वी विल डिफाइन इज sin of angle C. Sin of angle C. Sin of angle C. Sin is what? Sin is a trigonometric operator. मैं इसे trigonometric एक operator कहूंगा. Sin of angle C का मतलब होता है, it is basically the ratio of perpendicular upon hypotenuse. Okay, it's very simple. I will say that trigonometric ratio है sin of angle C. इसे मैं कैसे पढ़ूंगा? sin of angle C. sin of angle C. यहां पे ये sin C जो लिखा है, it do not mean that it is sin into C. ये sin into C का मतलब नहीं है, ये sin of angle C है. अगर मैं इसमें से ये एंगल C को हटा देता हूं, तो ये साइन अपने आप में कुछ भी नहीं है, इसकी कोई वैल्यू नहीं है, इसका कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, इसका कोई सिग्निफिकेंस नहीं है. सो इन सिंपल लैंग्वेज आई विल से साइन ऑफ एंगल C होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस. परपेंडिकुलर किसके रिस्पेक्ट में? एंगल C के नजरिए से. और हाइपोटेनियस किसके नजरिए से? अगेन एंगल C के नजरिए से. एंगल C के नजरिए से परपेंडिकुलर क्या है? AB. तो मैं कहूंगा साइन ऑफ एंगल C gives you basically the ratio of AB upon AC. This is what simply means the trigonometric ratio. Second, cosine of angle C. Okay, it is cosine. Cosine of angle C is defined as base upon hypotenuse. Now, base किसके रिस्पेक्ट में? अगेन एंगल C के. क्यों? क्योंकि यहां पर मैं एंगल C पे कोसाइन अप्लाई कर रहा हूं. कोसाइन क्या है? एक ऑपरेटर है. कोसाइन ऑपरेटर लगाने से, कोसाइन ऑपरेटर इस एंगल पे लगाने से मुझे बेस और हाइपोटेनियस का रेशियो मिल जाता है. ओके, इट्स अ मैजिक कि ऐसा हो रहा है. सो कोसाइन ऑफ एंगल C इज इक्वल्स टू बेस अपॉन हाइपोटेनियस. बेस क्या है? BC और हाइपोटेनियस इज AC. सो दिस इज BC अपॉन हाइपोटेनियस क्या है? AC. ओके, थर्ड ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होता है टेंजेंट ऑफ एंगल C. ओके, टेंजेंट ऑफ एंगल C
टेंजेंट ऑफ एंगल सी होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। टेंजेंट ऑफ एंगल सी क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। सो टेंजेंट ऑफ एंगल सी मतलब इस एंगल सी के रिस्पेक्ट में परपेंडिकुलर ए बी और बेस क्या है? बी सी। तो मैं कहूंगा दिस इज इक्वल्स टू ए बी अपॉन बी सी। इट्स वेरी सिंपल। सिमिलरली फोर्थ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होता है कोसिकेंट ऑफ और कोसिकेंट एंगल सी। कोसिकेंट ऑफ एंगल सी, कोसिकेंट इज व्हाट? इट्स अ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। ये आपको याद करना पड़ेगा। साइन, कोसाइन, टेंजेंट और कोसिकेंट, ये सभी क्या है? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं। सो कोसिकेंट ऑफ एंगल सी का मतलब होता है हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर। हाइपोटेनियस क्या है एंगल सी के रिस्पेक्ट में? ए सी। और परपेंडिकुलर क्या है? ए बी। तो कोसिकेंट ऑफ एंगल सी हो जाएगा ए सी अपॉन ए बी। ओके, ये होता है कोसिकेंट। नाउ इसी तरह से होता है सीकेंट ऑफ एंगल सी। सीकेंट ऑफ एंगल सी होता है हाइपोटेनियस अपॉन बेस। हाइपोटेनियस है ए सी अपॉन बेस है बी सी। ओके, इसी तरह से द लास्ट वन कोटेंजेंट ऑफ एंगल सी। कोटेंजेंट ऑफ एंगल सी होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर। कोटेंजेंट ऑफ एंगल सी होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर। बेस होता है बी सी अपॉन परपेंडिकुलर होता है, परपेंडिकुलर इज ए बी। So these are the trigonometric ratios that we will use in this chapter. This is the concept of trigonometric ratios. Trigonometric ratios क्या हैं? मुझे दिख रहा है यहाँ पर तीन तरह की साइड्स हैं। मैं तीन तरह की साइड्स में से किसी भी दो साइड्स को पिक करके उनका रेशियो चूज कर सकता हूं। फॉर एग्जाम्पल मैंने हाइपोटेनियस और परपेंडिकुलर को चूज करा, तो जब मैं परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस निकालूंगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस जब निकालूंगा, तो इस वैल्यू को मैं कहूंगा साइन ऑफ एंगल सी। ओके, क्या कहूंगा इस वैल्यू को मैं? साइन ऑफ एंगल सी। इसी तरह से जब मैं बेस और हाइपोटेनियस में रिलेशन निकालूंगा, तो बेस अपॉन हाइपोटेनियस को मैं कहूंगा कोसाइन ऑफ एंगल सी। ओके, और इसी तरह से जब मैं परपेंडिकुलर और बेस में रिलेशन निकालूंगा, इस परपेंडिकुलर और बेस के रिलेशन को मैं कहूंगा टेंजेंट ऑफ एंगल सी। और इसी तरह से अगर मैं हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर कर देता हूं, जैसे यहां पर हमने क्या करा? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस हुआ साइन ऑफ एंगल सी। इसी तरह से हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर अगर कर दिया जाए, दैट विल बी नोन एज कोसिकेंट ऑफ एंगल सी। इसे पढ़ेंगे कैसे? कोसिकेंट ऑफ एंगल सी, कोसाइन ऑफ एंगल सी, टेंजेंट ऑफ एंगल सी। ओके, सीकेंट ऑफ एंगल सी, कोटेंजेंट ऑफ एंगल सी। अगेन आई एम रिपीटिंग, टेंजेंट और एंगल सी मल्टीप्लीकेशन में नहीं है। ओके, टेंजेंट क्या है? एक ऑपरेटर है। जब मैं किसी एंगल पे टेंजेंट वाला ऑपरेटर लगा देता हूं, तो टेंजेंट वाला ऑपरेटर लगा के मुझे परपेंडिकुलर और बेस का रेशियो मिल जाता है। ओके, इट इज द सिंपल मीनिंग ऑफ द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। Okay, that's why we call it as a ratio. Why? Because we are getting a value using the ratio of two sides. कोई भी दो ट्राइंगल की साइड्स पिक कर लीजिए, उनका रेशियो निकालिए। अगर मैं परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस करता हूं तो वो साइन हो जाएगा, और हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर करता हूं तो वो कोसिकेंट हो जाएगा। ओके, तो इस तरह से ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं। अब इन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को हम इस तरह से नहीं लिखते, इन्हें हम और सिंपल वे में लिखते हैं। जैसे कि साइन ऑफ एंगल सी जो लिखा है, इट इज सिंपली रिटन एज साइन सी। क्या लिखूंगा? साइन सी। तो साइन सी क्या हो गया? साइन सी हो गया परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, मतलब ए बी अपॉन ए सी। तो मैं लिखूंगा फॉर दिस पर्टिकुलर ट्रायंगल साइन सी इज इक्वल्स टू
AB upon AC. This is the value of sin C. इसी तरह से कोसाइन ऑफ एंगल C को मैं लिखूंगा cos C. cos C कितना हो जाएगा? cos C मतलब इस ट्राइंगल का एंगल C के रिस्पेक्ट में बेस और हाइपोटेनियस. ओके, इन दिस पर्टिकुलर ट्राइंगल with respect to angle C, base upon hypotenuse. Base is BC. So cos of C को मैं कहूँगा BC upon AC. This is the cosine of angle C. Similarly, tangent को मैं क्या कहूँगा? Tangent को मैं कहूँगा tan of angle C. Again remember, cos this term cos and this C, they are not in multiplication. They are not in multiplication. So tan of C कितना हो गया? tan of C को हम क्या कहेंगे? tan of C is perpendicular upon base, मतलब AB upon BC. AB upon BC. इसी तरह से cosecant of angle C लिखा तो cos of angle C, cosec of angle C. इसे हम क्या पढ़ेंगे? cosecant मतलब cosec. मैंने ये ANT वाला टर्म हटा दिया, सिर्फ cosec. इसे हम पढ़ेंगे cosec of angle C, that is equals to AC upon AB. Okay? Similarly, this secant में से भी ANT हटा दिया तो ये क्या बन गया? sec. So I will say sec of angle C. इस तरह से लिखेंगे sec of angle C. Remember, this sec term and this C term are not in multiplication. This sec is basically an operator. So sec of angle C का मतलब होता है AC upon BC. क्या मतलब होता है? AC अपॉन BC. इसी तरह से कोटेंजेंट को हम लिखेंगे cot. ओके, कोटेंजेंट को हम क्या लिखेंगे? cot. cot ऑफ एंगल C होता है BC अपॉन AB. तो इस तरह से हम 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज डिफाइन करते हैं: साइन, कॉस, tan, cosec, sec एंड cot. ओके, इन 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की हम देख सकते हैं अलग अलग वैल्यूज होती है. 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज डिफाइन करने की जरूरत क्या है? तो हम यहां पर जब ट्राइंगल को देखते हैं तो हमें दिखता है कि इस ट्राइंगल में 3 साइड्स अवेलेबल हैं. तो 3 में से जब भी मैं कोई भी 2 साइड्स को पिक करूंगा, 2 रेशियोज बन के आएंगे. या तो मैं परपेंडिकुलर को हाइपोटेनियस से डिवाइड कर लूं या हाइपोटेनियस को परपेंडिकुलर से डिवाइड कर लूं. ये भी एक रेशियो हो सकता है, ये भी एक रेशियो हो सकता है. इसी तरह से जब मैं बेस और हाइपोटेनियस को चूज करूंगा तो ये भी एक रेशियो हो सकता है, ये भी एक रेशियो हो सकता है. ओके, बेस अपॉन हाइपोटेनियस कर लिया जाए या फिर हाइपोटेनियस अपॉन बेस कर लिया जाए, देयर आर 2 डिफरेंट रेशियोज. सिमिलरली टेंजेंट में परपेंडिकुलर अपॉन बेस लिया जाए और कोटेंजेंट में बेस अपॉन परपेंडिकुलर मींस जस्ट द रिवर्स ऑफ द 2 साइड्स. दैट्स व्हाई वी हैव डिफाइंड 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज. अगर इस ट्राइंगल में 3 साइड नहीं होती, 3 से ज्यादा साइड्स होती, तो हमारे पास और ज्यादा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आ जाते. लेकिन 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज से हम पूरे ट्राइंगल को डिफाइन कर सकते हैं. ओके, हम पूरे ट्राइंगल को डिफाइन कर सकते हैं, इसे समझा सकते हैं. ओके, सो दिस इज द बेसिक यूज ऑफ दीज ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज. नाउ खास बात ये कि ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हमने लिखे हैं, साइन, कोसाइन, टैन, देन कोसेक, देन सेक, देन कॉट, ये रेशियोज क्या आपको याद करने हैं? हाँ, आपको ये सभी रेशियोज याद करने हैं. आपको ये याद रखना है कि कौन सा रेशियो, फॉर एग्जांपल कॉस रेशियो क्या बताएगा? कॉस रेशियो हमेशा बताएगा बेस अपॉन हाइपोटेनियस का रेशियो. ओके, अगर मैं किसी एंगल पे कॉस अप्लाई कर देता हूं, किसी एंगल पे कॉस का ऑपरेटर अप्लाई कर देता हूं, तो मुझे क्या मिलेगा? मुझे मिलेगा बेस और हाइपोटेनियस का रेशियो. ओके, इसी तरह से किसी एंगल पे अगर मैं सेक अप्लाई कर देता हूं तो मुझे मिलेगा हाइपोटेनियस अपॉन बेस का रेशियो. ओके, दिस इज बेसिकली द कंसेप्चुअलाइजेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो. इस तरह से हमने इन्हें डिफाइन करा. ओके, नाउ इसे नोट कर लीजिए. फिर हम ये समझते हैं कि इन्हें डिफाइन करके हमें फायदा क्या हुआ, किस तरह से हमने इसे यूज किया. ओके, and we will learn them by some practical examples. So first you note this.